नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर इज द सिकल सेल एनीमिया। सो नाम से ही क्या लग रहा है आपको, एनीमिया दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, एंड सिकल सेल दैट इज द बाइकॉन्केव शेप आरबीसीज कन्वर्टेड इनटू सिकल शेप। सो नॉर्मली हमारे आरबीसीज का शेप क्या होता है, बाइकॉन्केव इन शेप एंड इट कंसिस्ट हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन दैट इज द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट्स. So this biconcave shape RBC is modified in the form of this sickle shape. So when it is modified in the form of sickle shape, their hemoglobin content is very low. That's why person become anemic. That's why the disease name is sickle cell anemia. Then what is the cause of sickle cell anemia? So hemoglobin, it is a red color respiratory pigment which carry the oxygen. So actually hemoglobin is the conjugated protein. So conjugated protein, that is, it is made up of two parts, iron containing heme and second protein is globin. So globin is a simple or primary protein which is made up of 4 polypeptide chain. 4 polypeptide chain, 2 alpha and 2 beta chain. So यदि हम बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन को कंसीडर करें, so it is a made up of number of amino acids. So approximately 20 amino acid forms the one polypeptide chain. So बीटा चेन को यदि हम कंसीडर करें तो उसके सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं और उनका एक सीक्वेंस होता है कि फर्स्ट नंबर पर आर्जिनिन है, सेकंड नंबर पर ग्वानिन है, थर्ड नंबर पर आर्जिनिन है, तो ऐसा फिक्स अमीनो एसिड्स का नंबर होता है. लेकिन यदि हम उसके नंबर 6 वाले अमीनो एसिड्स को देखें, सो नंबर 6 वाला अमीनो एसिड जो है वो होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड. नेम ऑफ द अमीनो एसिड इज ग्लूटामिक एसिड. और उसका ये जो जेनेटिक कोडोन है वो है GAG. तो G स्टैंड्स फॉर गुआनिन, A स्टैंड्स फॉर एलिनिन, G स्टैंड्स फॉर गुआनिन. लेकिन म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन दैट इज एनी चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, उसको डिटेल में हम इसी लेसन में स्टडी करेंगे. सो यहाँ पर म्यूटेशन हो गया. सो म्यूटेशन होने से जो नंबर 6 वाला अमीनो एसिड था वो चेंज हो गया वेलिन में. सो कैसे वेलिन में चेंज हो गया, क्योंकि एडेनिन के प्लेस पर यहाँ क्या आ गया, यूरेसिल. सो यूरेसिल आरएनए में होता है. सो ओनली द चेंज इन वन बेस, एडेनिन के प्लेस पे क्या आ गया, यूरेसिल. सो ये ग्लूटामिक एसिड है वो किसमें टर्न हो गया, वेलिन में. सो इस तरह के म्यूटेशन से ये जो बाइकॉन्केव शेप आरबीसीज था वो किसमें मॉडिफाई हो गया, सिकल शेप में. कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज आल्सो रिड्यूस्ड, सो पर्सन बिकम एनीमिक. सो एक्चुअली इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. So autosomal that is both gender may be affected, boys and girls simultaneously affected by the sickle shape, and recessive that is parents are generally carrier. So this disease is represented by genotype, 3 genotypes. Number 1 is HbA, hemoglobin always occurs in a pair. So this is the normal hemoglobin. Second HbA and HbS. So S stands for sickle shape. So this is the carrier, and third one is a HbS and HbS. This is the sufferer with the sickle cell anemia. So if we crossed with the one normal parents with the one carrier parents. This is normal parent and this is carrier parents. So this, when the cross between normal hemoglobin to normal hemoglobin, this is the normal progeny. This is the carrier progeny, and this is also normal progeny, and this one is also carrier progeny. So what is the result? 50% normal progeny and 50%
कैरियर प्रोजेनी। लेकिन कैरियर के लिए कोई सिंबल हमारे पेडिग्री में नहीं है, तो यहाँ पर टेक्स्ट में लिखा जाएगा नॉर्मल, बट उसका जीनोटाइप कैसा आ रहा है, कैरियर, क्योंकि एक जीन्स में नॉर्मल है और एक जीन्स में वो अफेक्टेड है। सेकंड क्रॉस यदि हम करें दोनों कैरियर पेरेंट्स का, ठीक है, इफ वी क्रॉस विद द बोथ कैरियर पेरेंट्स, सो वन पेरेंट्स genotype, second parent is also carrier. If this gamete is crossed with this normal hemoglobin, so what is the progeny, normal progeny. If the normal hemoglobin crossed with the carrier, this is the carrier progeny, and this is also carrier progeny, but this progeny is affected by sickle cell. So यदि हम इसका phenotype लिखें, this is normal, maybe daughter or girl, this is carrier, it may be daughter or girl, daughter or son, and it is also carrier, it may be boy or girl, but this is affected. Affected means sickle cell anemia. So this affected progeny having both gametes with the sickle cell genes. So इस तरह से हमने देखा कि ये हमारा जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि तभी वो एक्सप्रेस होगा तब दोनों जीन्स में सिकल सेल वाला कंडीशंस होगा, ठीक है। अब यदि हम थर्ड क्रॉस करवाएं एक कैरियर के साथ और एक अफेक्टेड के साथ, सो ये जो अफेक्टेड प्रोजेनी है, इस अफेक्टेड प्रोजेनी के पास दोनों हीमोग्लोबिन का जीन्स अफेक्टेड है और ये कैरियर प्रोजेनी है। सो ये जब इसके साथ क्रॉस करेगा, सो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जब सिकलिंग के साथ मिलेगा तो ये कैरियर होगा, बट नॉर्मल प्रोसीड होगा क्योंकि इसके कोई सिंबल नहीं है। दिस नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो affected hemoglobin, this is also carrier, and this affected hemoglobin is crossed with affected hemoglobin, that is, it is affected or sickling, and both sickling gamete is crossed, that is sickle cell. So what is the result? 50% carrier and 50% affected. यही चीज हम यदि पेडिग्री के द्वारा शो करें, सो ये एक पेरेंट है, ये कैरियर है और ये अफेक्टेड है, क्योंकि सेकंड पेरेंट्स हमने कैसे शो किया, अफेक्टेड, तो हमेशा अफेक्टेड को पेडिग्री से कैसे शो करते हैं, इस तरह से शेडेड करके। ये जो कैरियर है फीमेल, उसने केवल सिकल सेल का जीन्स कैरी किया, लेकिन वो अफेक्टेड नहीं है, तो कोई सिंबल नहीं हमारे पास पेडिग्री, इसलिए हम इसको नॉर्मल सिंबल देंगे। अब जब ये जनरेशन हम ड्रॉ करेंगे, इसको पेडिग्री के थ्रू शो करेंगे आप, ये कैसा है, कैरियर, ठीक है। सो ये हो गई नॉर्मल कैरियर, ये भी कौन है, कैरियर है, तो ये भी क्या हो गया, नॉर्मल सन हो गया। लेकिन ये दोनों अफेक्टेड हैं, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर अफेक्टेड। सो हमने पेडिग्री में क्या स्टडी किया था, यदि बॉय गर्ल दोनों अफेक्टेड होंगे तो हमारा पेडिग्री कैसा होगा, ऑटोसोमल। बॉय गर्ल में से कोई एक अफेक्टेड होगा तो सेक्स लिंक्ड, लेकिन हम यहाँ दोनों जेंडर देख रहे हैं, बॉय एंड गर्ल्स बोथ आर अफेक्टेड, सो दिस इज ऑटोसोमल। और पेरेंट्स ही यहाँ पर अफेक्टेड शो हो रहा, मतलब वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। सो ये पेडिग्री क्या शो कर रही है हमको, डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल पेडिग्री। और इसका यदि हम जीनोटाइप लिखें, सो किस तरह से लिखेंगे, ये फीमेल पर्सन हो जाएगी इस तरह से, और ये मेल पर्सन हो जाएगा अफेक्टेड, ठीक है। ये प्रोजेनी क्या शो कर रही है, HBA एंड HBS, ये प्रोजेनी भी क्या शो कर रही है, HBA एंड HBS, बट बोथ प्रोजेनी हैविंग दिस टाइप ऑफ genotype. So this is the genotype of sickle cell anemia in the F2 generation. So this is the pedigree analysis of the sickle
sickle cell anemia. So these two are the Mendelian disorder.